So, hello everyone. My name is Ayush Rathore. I am from Kaushalya Academy. So, let's start our lecture series on crash course for NEET 2022. Okay? So, the series is all about concept through questions in YouTube series from basics to advanced approach. What is this series is all about? So, in this series, we will do NEET previous year questions in complete exhaustive details in a comprehensive manner. Okay, and with the help of these questions we will understand the concepts behind these questions. So first we will do a particular topic, like for an example we will start electromagnetic waves. We will study all the concepts of electromagnetic waves, and from that concepts the questions that come in NEET examination, we will discuss all the previous year questions from that particular topic. So this series is all about concept through questions. Okay, क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स कैसे जनरेट कर पाएंगे, और उसके पहले हमको क्या पढ़ना है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना है. तो पहले हम लोग अभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आज का होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, इन द पास्ट 6 years I have noticed that from this particular chapter at least 1 or 2 questions are coming in NEET examination. So this concept is very important as far as NEET exam is concerned or any other exam in the country. Okay, so let's start our lecture series on electromagnetic waves first. Okay, so what do you mean by electromagnetic waves? So electromagnetic waves is nothing but a electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. Okay, this is nothing but a electromagnetic radiation. What do you mean by electromagnetic? Electro means electric field, magnetic means magnetic field. So we all know that from changing current, when a current flows through a wire, there is a magnetic field in the nearby of the circuit. We have seen this in the chapter current electricity. In electromagnetic induction, we have seen that from the changing magnetic flux, there is an induced EMF in the circuit. And because of that induced EMF in the circuit, there is a current. So there is a change in magnetic field, continuously there is a change in electric field. So electromagnetic waves is nothing but a oscillation of electric and magnetic field with respect to the time. So this is electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation is one of the many ways that energy travels. Remember, wave is nothing but an energy. Energy is traveling from a very far distance. For example, sun से आपकी पूरी की पूरी electromagnetic waves आती है. सन से आपका पूरा एनर्जी प्रोपोगेट होता है, लाइट प्रोपोगेट होता है. ठीक है, थ्रू स्पेस के बारे में आप सभी लोगों को पता है. स्पेस एक खाली जगह होती है, एक वैक्यूम होता है जहां पर कोई एयर नहीं होता है, लेकिन तब भी वहां से रेडिएशन पॉसिबल होता है. रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें किसी भी टाइप का मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है. आपने पढ़ा होगा कि कंडक्शन कन्वेक्शन में आपको एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन रेडिएशन में कभी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो खाली जगह पर भी ट्रेवल होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही एक ऐसा रेडिएशन है जहां पर मीडियम का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है. ठीक है, द हीट फ्रॉम अ बर्निंग फायर, हम लोग ठंड वगैरह में बॉनफायर वगैरह करते हैं, तो उससे जो हमको हीट मिलती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, द लाइट फ्रॉम द सन, जो मैंने अभी आपको बताया, द एक्स रेज यूज्ड बाय आवर डॉक्टर्स एज वेल एज द एनर्जी यूज्ड टू कुक फूड इन अ माइक्रोवेव आर ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये सारे के सारे फॉर्म हैं एक. ठीक है,
while these forms of energy might seem quite different from one another, they are related in that they all exhibit wave like properties. ठीक है, तो वेव के पास जनरली कोई भी अगर बेटा वेव हो तो वेव के पास दो तीन प्रॉपर्टी तो होती ही होती है. एक प्रॉपर्टी होती है बढ़िया सी आपकी एम्पलीट्यूड होता है उसके पास, एक होता है उसके पास फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है उसके पास पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, या उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड. तो ये तीन चीजें एक वेव के पास होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और टाइम पीरियड होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इन अ वेव फॉर्म. ओके, तो हम लोगों ने भी एक और चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइट जो होता है वो डुअल इन नेचर होता है. एक पार्टिकल के फॉर्म पर भी होता है और आपके वेव के फॉर्म पर भी होता है लाइट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब वेव्स क्या होता है? अब वेव्स जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका एक वेव है. तो वेव कुछ भी नहीं होता है, वेव एक डिस्टरबेंस होता है. बिल्कुल आप इस चीज को नोटिस करो, वेव आपका होता है डिस्टरबेंस इन ए पर्टिकुलर फिजिकल मीडियम और ए फील्ड. इन ए पर्टिकुलर फिजिकल मीडियम और ए फील्ड. ठीक है, इसको अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो जिम में आजकल बहुत सारी एक एक्सरसाइज चलती है, रोप एक्सरसाइज चलती है. तो रोप को हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस अप एंड डाउन करते हैं. तो उसमें वेव नेचर का एक फिनोमिना डेवलप होता है. ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वेव एक क्या है, डिस्टरबेंस है. उस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल वेव. कौन सी वेव बोलते हैं, मैकेनिकल वेव. ठीक है, और उसमें होता क्या है, वहां पर वाइब्रेशन होता है उस चीज में और ऑसिलेशन होता है. ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल और अ बॉडी इज नोन एज ऑसिलेशन. ठीक है, तो वेव में भी यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन होगा और उस फॉर्म को हम बोलेंगे ऑसिलेशन. द स्वेल ऑफ वेव इन द ओशन एंड द सब्सिक्वेंट डिप दैट फॉलोज इज सिंपली अ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन. जैसे कि ओशन में जो वेव होता है, अप होता है, डाउन होता है, इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ द वाटर at the ocean surface, at the ocean's surface. Okay, so electromagnetic waves are similar, it is similar, but they are also distinct, different in that they actually consist of triple two wave oscillating perpendicular to one another. One of the waves is an oscillating magnetic field and the other is oscillating electric field. जैसे नाम पे ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब होता है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो कॉन्टिन्यूसली आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि हाउ इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस कैन बी विजुअलाइज्ड एज फॉलोज. अब इसका हम लोग एक बार विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ जिफ फाइल. ओके, so this is our diagram. तो देखो यहाँ पर ये है वेवलेंथ आपका, इस वेव का यहाँ से यहाँ तक के पूरा वेवलेंथ हो जाता है. और ये जो आपका ये वाला जो आपका ऑसिलेशन यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा है. क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा है. और ये वाली जो वेव है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रही है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन शो कर रहा है. ये जो m होता है ना, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है. हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है, E यहाँ पर लिखा हुआ है तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. E देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, M देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसी चीज को विजुअलाइज करो ये वाले जिप फाइल में. तो ये आपका जो रेड कलर का है वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ब्लू कलर का है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है. तो देखो यहाँ पर जिप फाइल में आपको दिख रहा होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और एक यहाँ पर ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग वेक्टर घूम रहा है. देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो वेक्टर है ना वो ऊपर नीचे देखो हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो वेक्टर है ना वो देखो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन पर हो रहा है. तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. ये दोनों ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट हो रहा है.
ये वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी भी जब ट्रेवल होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो करती है ऑसिलेशंस को। यहाँ पर आपको जिप फाइल में अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ कहाँ से प्रोपोगेट होती है, देखो हमारे मोबाइल फोन पर एक छोटा सा एंटीना होता है, वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। जो टावर लगे रहते हैं जियो के, एयरटेल के, वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। घर के ऊपर जो एंटीना आपके लगा होता है डिश टीवी का, वहां से भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, ठीक है। एंड इसको लाइट वेव भी हम बोलते हैं, अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक दो चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमको इसको प्रोपोगेट करवाना है, तो हम इसको किस तरीके से प्रोपोगेट करा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्किट्स। देखो ये सर्किट की मदद से भी प्रोपोगेट होता है, एंटीने पर भी सर्किट्स लगे होते हैं। उसमें सर्किट कौन सा लगा होता है, उसमें सर्किट लगा होता है आपका एलसी सर्किट लगा होता है। कौन सा सर्किट लगा होता है, एलसी सर्किट। एल आपको सभी लोगों को पता है, एल आपका होता है इंडक्टेंस, सी आपको पता है कैपेसिटेंस। तो ये दो आपके होते हैं ऑसिलेटरी सर्किट या ऑसिलेशन सर्किट। ये सर्किट की मदद से हमको क्या मिलता है, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलसी सर्किट। एल इज योर सेल्फ इंडक्टेंस और सी इज योर कैपेसिटेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस से नहीं होता है, बिल्कुल याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर एमसी भी तो हो सकता है। नहीं, एमसी नहीं होता है, एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर काम नहीं करता है, ठीक है। सो वी नाउ एग्जामिन द रिमेनिंग टू एलिमेंट सर्किट कॉम्बिनेशन एलसी। यू विल सी दैट इन दिस केस, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस do not decay exponentially with time but vary sinusoidal, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पर डीके नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपके नीट का, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वो एक्सपोनेंशियल डीके होगा कि साइनोसॉइडल होगा कि लॉगरिथमिक होगा, तो आप टिक करोगे साइनोसॉइडल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सारे की पॉइंट्स हैं जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीरियड क्या है, टी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को स्मॉल वी से यहाँ पर डिनोट किया है। आप एफ वगैरह से भी डिनोट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है सिंबल का, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। द रिजल्टिंग ऑसिलेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, देखो यहाँ पर कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा, सर कैपेसिटर भी बोल रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल रहे हो, तो देखो यहाँ पर उस डाउट को क्लियर करो यहाँ पर बढ़िया तरीके से। कैपेसिटर क्या होता है, जनरली हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर लिखा है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, इंडक्टर के पास कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इंडक्टर के पास कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब देखो यहाँ पर इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। इंडक्टर देखो आपका इस तरीके से होता है, एक कॉइल होता है ना। अब इस कॉइल में कोर नहीं है, कोर नहीं है, कोर मतलब कोई एक मटेरियल अंदर वहां पर नहीं है, ठीक है। तो कोर अगर यहाँ पर नहीं होता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर विदाउट कोर रहता है, विदाउट कोर रहेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम रहेगी, विद कोर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपका इंडक्टर होता है। जब इस इंडक्टर में करंट पास होता है ना बेटा, जब इस इंडक्टर में करंट पास होगा तब इसके अराउंड क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगी। ये देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके यहाँ पर जनरेट होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इंडक्टर के पास यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर के पास यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये दोनों फील्ड क्या करेंगी, ऑसिलेट करेंगी, ठीक है। चलो अब एक बार इसका प्रोसेस देख लो कैसे ऑसिलेशन होता है। यहां पर देखो ये A B C D E F G H,
ये पूरा का पूरा एक इसका साइकिल है। अब इस साइकिल को हमको अच्छे से समझना है। देखो यहाँ से हम चालू करते हैं, तो ये एक सर्किट बना हुआ है आपका, यहाँ पर कैपेसिटर है बेटा, यहाँ पर आपका इंडक्टर है, ठीक है। कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना, एनर्जी को स्टोर करके रखना, स्टोर करके रख लिया एनर्जी को, ठीक है। अब एनर्जी को जब स्टोर करके रख लिया है तो ये वाली प्लेट देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट बेटा नेगेटिव चार्ज है। करंट आपका जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ पर जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ में जाता है। तो यहाँ पर मान लो इनिशियल स्टेज पर कोई भी करंट नहीं है, इनिशियल स्टेज पर क्या है, कोई भी करंट नहीं है। अगर कोई भी करंट नहीं है इनिशियल स्टेज पर इस सर्किट पर, तो इस वाले इंडक्टर पर, इस वाले इंडक्टर पर आपका करंट नहीं जा रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर करंट आपका चेंज नहीं हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो आपका फ्लक्स नहीं आएगा। अगर आपका फ्लक्स नहीं आएगा तो इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहली वाली कंडीशन में मैग्नेटिक एनर्जी पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, जीरो हो जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज बीन जीरो मैग्नेटिक एनर्जी। और कैपेसिटर के पास पूरी की पूरी एनर्जी भरी हुई रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको ये बिल्डिंग खड़ी हुई दिख रही है, ये आपकी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई नहीं दिख रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है। ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आपका आ चुका है, जो मैंने आपको भी समझाया है। क्लियर? चलो अब आगे देखो, यहाँ पर सेकंड पार्ट वाले में देखो, ये सेकंड वाले डायग्राम में देखो। अभी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 लाइनें बनी हुई है, करंट जीरो था। दूसरी स्टेज पर क्या हुआ कि करंट धीरे धीरे क्या है यहाँ से ना निकलना चालू हो गया, धीरे धीरे बेचारा करंट यहाँ से निकलना चालू हो गया। जैसे ही करंट यहाँ से निकलना चालू हुआ, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, देखो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखो जनरेट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, चार्जेस अब खत्म हो रहे हैं, और चार्जेस कहाँ बढ़ रहे हैं, चार्जेस यहाँ पर बढ़ना चालू हो रहे हैं। तो ये दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा सेकेंड स्टेज में, तो दोनों बिल्डिंग है बराबर, दोनों बिल्डिंग है आपकी बराबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी बिल्डिंग उतनी बड़ी है और मैग्नेटिक एनर्जी की भी बिल्डिंग उतनी बड़ी है, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस में ऐसा होगा। तीसरे वाले प्रोसेस में क्या होगा, देखो यहाँ पर अब बेचारे के पास कोई भी चार्ज नहीं बचा है, और इस सर्किट में इस कंडीशन पर मैक्सिमम करंट आपका फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट आपका फ्लो हो रहा है। देखो मैक्सिमम करंट, जब मैक्सिमम करंट आपका यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर क्या जम गया पूरा का पूरा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। देखो यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पर कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो गई। ये भी क्वेश्चन आपका एक बार पूछ चुका है, ठीक है। ये आपका तीसरा साइकिल है। अब यहाँ पर चौथी साइकिल में आते हैं। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब आपका करंट फ्लो करेगा ऐसे, इस तरीके से, यहाँ पर करंट विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस व्हाट विल हैपन, ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, ये पोलराइजेशन अपना चेंज कर देंगे। पहले देखो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव थी। ये वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इसका पोलराइजेशन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइकिल पर पूरी की पूरी जो एनर्जी है अब वो मैग्नेटिक में शिफ्ट हो गई थी। तो वापस से कैपेसिटर को एनर्जी देना है तो हमको उनकी प्लेट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरी की पूरी एनर्जी जाएगी और यहाँ पर क्या होते जाएगी, फिलअप होते जाएगी, ठीक। और ये वाले केस पर, फिफ्थ वाले साइकिल पर मैग्नेटिक एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी फिर से फिलअप हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बिल्डिंग जीरो हो गई है और यहाँ पर पूरी की पूरी वापस टॉल हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा देखो एक साइकिल यहाँ पर क्या हुआ, कवर अप हो गया। इस तरीके से पूरा साइकिल यहाँ पर क्या हो गया, कवर अप हो गया। देखो दिस इज योर कंप्लीट साइकिल, दिस इज योर कंप्लीट साइकिल। सेम साइकिल अब यहाँ से भी फॉलो हो जाएगी, कैपेसिटर, फिर वही, फिर सेम, फिर सेम, फिर सेम।
तो इस तरीके से आपका क्या वर्क करता है, LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन। और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको नहीं पढ़ना है। क्वालिटेटिव में हमको केवल थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, क्वांटिटेटिव में हमको पूरे डेरिवेशंस को डील करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था। एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो यहाँ पर बना हुआ है बढ़िया तरीके से एम्पलीट्यूड, ये भी एक एम्पलीट्यूड है, ये भी एक एम्पलीट्यूड है, ये भी एक एम्पलीट्यूड है। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, जो बॉटम वाला पार्ट होता है। और ये कैसे वेरी करता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और वेवलेंथ देखो यहाँ पर, वेवलेंथ, दिस इज योर वेवलेंथ फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, इसको बोलते हैं वन वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, एक वेवलेंथ पूरी हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी वेव्स की। अब बहुत अलग अलग टाइप की वेव्स होती है, उस वेव्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और वो स्टडी होती है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका आ गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिख रहा है, इसको आपको डिटेल में समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर योर एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एनालॉजी वगैरह दूंगा, बेटा ध्यान से सुनना। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, वो एक डिवाइडेड होता है बहुत सारी वेव से। तो पहली वेव है बेटा रेडियो वेव, फिर दूसरी है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो घर में हम माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, तो उसी से ही आपका ये पूरा काम करता है माइक्रोवेव, जिसमें फूडिंग वगैरह बहुत जल्दी से बन जाती है। क्यों बनती है हम बाद में देखेंगे, बस अभी आप इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से पढ़ो। इंफ्रारेड वेव होती है, विजिबल होती है। पूरे फिजिक्स में आपको 11th-12th में ये सारी वेव्स का काम नहीं पड़ेगा। रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, सिर्फ विजिबल का ही ज़्यादातर काम होता है। लेकिन इन पास्ट 3 to 4 ईयर्स ये इनसे भी सारे क्वेश्चंस आपके बनने चालू हो गए हैं। तो इसलिए हमको ये पूरी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, विजिबल होता है आपका, अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरे होता है और गामा होता है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पर ये कुछ, यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही होगी, यहाँ पर एक इंसान ह्यूमन दिख रहा होगा, यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रहा है, ये एक नीडल पॉइंट है, ये आपका प्रोटोजोआ है, ये आपका मॉलिक्यूल है। देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी का, ये हमारा छोटा सा एटम है और ये मेरा एटॉमिक न्यूक्लियस है। ये सब क्या है, ये क्यों बना है, रेडियो वेव। यहाँ पर रेडियो वेव लिखा है और नीचे बिल्डिंग बनी है। देखो बिल्डिंग इसलिए बनी है क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती है ना बेटा, उसका जो वेवलेंथ होता है वो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की बिल्डिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी दुबई में। ठीक है, 1000 मीटर की आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, इसलिए रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, उतनी बड़ी होती है। उसको शो करने के लिए दिखाया गया है। ठीक है, माइक्रोवेव आपका ह्यूमन से रिलेटेड होता है माइक्रोवेव्स। बटरफ्लाइज आपका ह्यूमन से रिलेटेड होता है। ठीक है, उनकी हाइट से रिलेटेड होता है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की। ठीक है, इंफ्रारेड आपका जो निडल पॉइंट होता है, निडल पॉइंट उसके जितना होता है, उसके साइज के जितना होता है। ठीक है, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो प्रोटोजोआ के साइज के जितना होता है। प्रोटोजोआ का साइज कितना होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो होता है आपका अल्ट्रावायलेट। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कितना टाइनी होता है बेटा, एंगस्ट्रॉम वगैरह में होता है वो पूरा का पूरा, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर्स में होता है। इसलिए इसको रिलेट किए हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट को मॉलिक्यूल से। एक्सरे का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। एटम्स हमारे देखो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, नेकेड आई से आप उसको देख नहीं सकते हो, एक्सरे वगैरह को भी आप नहीं देख सकते हो, अल्ट्रावायलेट को भी आप नहीं देख सकते हो, उनके स्ट्रक्चर्स को आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे आपके नैनो लेवल और एंगस्ट्रॉम लेवल पर सारी की सारी चीजें जाती है। गामा रे और छोटा, देखो एटॉमिक न्यूक्लियाई से इसको कंपेयर किया है। न्यूक्लियस कितना ही बड़ा होता है बेटा, एक एटम में छोटा सा न्यूक्लियस होता है। तो ये जितने भी आपको नीचे दिख रहे हैं ये कंपैरिजन के लिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर रेडियो वेव में इतनी बड़ी इसकी वेवलेंथ है, गामा रे में देखो वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी, पूरी ऐसी चिपकी हुई बनेगी, ऐसी पूरी चिपक गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है।
तो वेवलेंथ अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा किसकी है बोलोगे रेडियो वेव्स, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है बेटा गामा रे की। बिल्कुल याद रखो, ये सीक्वेंस याद रखो, आपके एग्जामिनेशन में आता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेडियो वेव की। बिल्कुल याद रखो, देखो 10 की पावर 4 दिखा रहा है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी। गामा रे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 10 की पावर 20। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा, गामा रे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब गामा रे की अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने मिलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेगा, E इक्वल टू क्या होता है बेटा HF होता है, मैक्स प्लैंक इक्वेशन होती है ये। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है सबसे, ये H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, F आपका फ्रीक्वेंसी होता है, E आपका क्या होता है एनर्जी होता है। तो जो F है आपका फ्रीक्वेंसी गामा का सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी गामा की ज्यादा होगी। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी गामा की ज्यादा होगी। और रेडियो वेव की एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत कम है, तो एनर्जी भी क्या रहेगी इसकी बहुत कम रहेगी। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है क्वेश्चन कि रेडियो वेव्स की एनर्जी ज़्यादा है कि गामा रे की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे गामा रे की एनर्जी ज़्यादा है। और आपको इस तरीके से दिया भी होगा, देखो कैसे दिया होगा पता है आपको, ऐसा दिया होगा गामा रे की एनर्जी इज ग्रेटर देन, और दूसरा यहाँ पर एक्स रे अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, फिर यहाँ पर अल्ट्रावायलेट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये ऑप्शन टिक लगाओगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमने बिल्कुल अच्छे से सीखा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। ठीक है, ओके। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट। कौन सी स्पीड से ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो आपका डायग्राम बना है ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम को शो करता है, विबग्योर। ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, विबग्योर। तो ये विबग्योर को थोड़ा सा क्या किया है, एक्सपैंड करके यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्सपैंड करके दिखाया है विबग्योर को, इतना पोर्शन। तो यहाँ पर है वॉयलेट, यहाँ पर है आखिरी में रेड। रेड वाले की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट वाले की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहाँ पर आपके सारे कलर्स बने हैं। और ये वेवलेंथ जो आपको दिखा रहा है नैनोमीटर्स में 700 nm। देखो यहाँ पर जो रेंज है ना वो ये है, इस तरीके से रेंज है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है एक बार। 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के आपकी विजिबल की रेंज होती है। बिल्कुल याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सीक्वेंस याद रखना, पहले वॉयलेट था फिर रेड था, कई बारी बुक में उल्टा भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द डुअल नेचर ऑफ लाइट। पहले भी बता चुका हूँ, जो लाइट का नेचर होता है वो डुअल होता है। लाइट बिहेव करती है पार्टिकल के जैसे भी और वेव फॉर्म के जैसे भी। ठीक है, और क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन आपका 3 चीज आपकी बेसिकली क्वांटाइज होती है बेटा, 3 चीज क्वांटाइज होती है। पहली कौन सी है, पहली कौन सी है आपकी चार्जेस, पहली कौन सी है आपकी चार्जेस क्वांटाइज होते हैं। दूसरा कौन सा है बेटा, एनर्जी क्वांटाइज्ड होते हैं, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तीसरा कौन क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम। तीसरा कौन क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये आपका होता है। ये 3 लोग आपके क्वांटाइज होते हैं। मास अभी तक के क्वांटाइज नहीं हुआ है बेटा, मास अभी तक के क्वांटाइज नहीं हुआ है, क्रॉस लगा दो इसमें। ठीक है, so we have already described how light travels through space as wave. This has been well known for quite some time. In fact, many physicists, Dutch physicist Christian Huygens first described the wave nature of light as far as back the late 17th century. 17th century के आसपास एक डच फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि लाइट एक वेव फॉर्म पर ट्रेवल करती है। ठीक है,
तो इसके बारे में जो पूरी स्टडी है हमारी वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएगी, उसके थ्रू जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब वो वाला कॉन्सेप्ट हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट कम्स अंडर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आओ। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स मैटर को बोलते हैं कि किससे बना है, पार्टिकल से ही बना है, जिसके पास क्या है बेटा, मास है, और जिसका जो पोजीशन है स्पेस पर वो नोन है। जो लाइट वेव्स है ऑन द अदर हैंड वर कंसिडर्ड टू हैव जीरो मास, बिल्कुल इसको याद रखो, एंड देयर पोजीशन इन स्पेस कुड नॉट बी डिटरमाइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेव में जीरो मास कंसिडरेशन होता है, पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल के पास मास होता है, उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू बी इन डिफरेंट कैटेगरीज। तभी तो बेटा एक पूरा का पूरा नया चैप्टर बना है ना, वेव ऑप्टिक्स। क्यों बनेगा वेव ऑप्टिक्स पूरा का पूरा चैप्टर, अगर वो कैटेगरी अलग नहीं होगी तो। सो साइंटिस्ट डिड नॉट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइट एंड मैटर इंटरेक्टेड, कैसे इंटरेक्शन होता है लाइट और मैटर का। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कोई एक रखा है, मान लो एक कोई टुकड़ा रखा है मैटर का, इसमें लाइट फॉल हो रही है, तो ये यहाँ पर जो मैटर है इसके पास अलग पार्टिकल है, लाइट के पास अलग पार्टिकल है, ये बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का, ये किस तरीके से हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी फिनोमिना है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बहुत बढ़िया इफेक्ट है ये आइंस्टाइन ने दिया था और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। ठीक है, बाकी ऐसा सच हमको भी नहीं पढ़ना है इतना। ठीक है, द ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर ये जो ये सब ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारे के सारे। और यहाँ पर जो डाइपोल, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो इस तरीके से ऐसे निकला हुआ है ऐसे, ये है आपका एंटीना, आपका एंटीना होता है। ठीक है, अलग अलग शेप के एंटीनाज होते हैं आपके। ठीक है, जो डिश टीवी के ऊपर इस तरीके से हैंग करके रखता है वो एंटीना अलग है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो एंटीना अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये है एक है डायपोल, एक्चुअल में ये एक है डायपोल। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ऑसिलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव आपके कौन साइड करेंगे, इस कौन साइड में आपको जो ट्रेवलिंग वेव मिलेगी, यहाँ से एनर्जी क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। ड्यूरिंग मीटिंग, जब पॉजिटिव नेगेटिव मीट करेंगे तब आपका ये चीज़ प्रोपोगेट होनी चालू हो जाएगी। एनर्जी सोर्स यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, ये आपका एलसी सर्किट है, इसके साथ सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ वाले अरेंजमेंट को बोल दिए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से कौन कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है। ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है, एंटीने से कनेक्टेड है। और ये जो वाईफाई सिग्नल जैसा जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये आपके मोबाइल फ़ोन से भी ट्रैवल करती है। आपके मोबाइल फ़ोन पर भी क्या है, छोटा सा एंटीना लगा हुआ है कैमरे के साइड में। ठीक है, आप जो कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इतना इंटरनेट अभी यूज़ कर पा रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ओके। तो ये जितना भी हमने डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए किया बेटा। थ्योरी, पूरा का पूरा थ्योरी हम अच्छे से समझे, वो भी क्वालिटेटिवली। अब हमको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्वांटिटेटिव वे में समझना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वांटिटेटिव बेस भी आते हैं और क्वालिटेटिव बेस भी आते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटेटिव बेस क्या होता है। डेरिवेशंस नहीं करना है हमको ना, बिल्कुल भी, क्योंकि हम क्रैश कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं तो डेरिवेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। द वेव स्पीड c and amplitudes of the electric and magnetic fields are related by। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखो, E इक्वल टू EM साइन kx माइनस ओमेगा t। k क्या है आपका बेटा, वेव नंबर, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, EM आपका क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये आपका क्या रहेगा बेटा, EM, ये आपका क्या रहेगा EM, और ये इस तरीके से ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका
BM, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैंने याद है आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। B इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं, C इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट ई नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में काम आती है और ये मैग्नेटिक फील्ड वाले में काम आती है। तो दिस इज योर वेव स्पीड, और ये जो c है ना बेटा, ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। यहां पर देखो एक और रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी रेशियो क्या होगा? स्पीड होगा, और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी रेशियो क्या होगा? c होगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड रेशियो लिखा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो लिखा है। तो E बाय B इज ऑल्सो C, EM बाय BM इज ऑल्सो C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सब आप इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चंस में पूरे काम आएंगे। K आपका वेव नंबर है, मैं लिख दे रहा हूं, K आपका है वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। रे क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है, रे क्या होता है और वेव फ्रंट क्या होता है। ये जो एरो है ये आपका क्या है बेटा? रे। कई बार देखे होगे महाभारत वगैरह में आता है, तो एक एरो को रखते हैं, तो ये समझ लो एक एरो है, ठीक है, उसी को हम लोग रे बोल रहे हैं। और ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, इट इज अ प्लेन, ठीक है, इट इज अ प्लेन, ठीक है, ये प्लेन है, ये आपका एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज लाइक दिस, ये ऐसे है, इस तरीके से है, प्लेन है ये, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट्स, और इसका स्पेसिफिक नाम अगर मैं बताऊं तो ये है प्लेनर वेव फ्रंट। यहां पर है ये प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होती है और स्फेरिकल वेव फ्रंट भी होती है, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? आप तालाब में पत्थर फेंको, ठीक है, जब आप पत्थर फेंकोगे तो देखना इस तरीके से आपके सर्कल्स बनने चालू होते हैं, बेटा ये होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन जो तालाब में आप जब फेंकते हो तो जो वेव फ्रंट इस तरीके की दिखती है, ये 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन रियल लाइफ में वो चीज़ क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। याद रखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, आगे हम पढ़ेंगे, अभी इतना बस ध्यान में रखो। ये ब्लू शेड वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, ये वाला शेड का देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आगे आओ। ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वांटिटेटिवली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए, फॉर नीट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एकदम, ठीक है। चलिए आगे आओ। फैराडे लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो सारी पुरानी चीजें हैं, फटाफट डील करते हैं। फैराडे लॉ, लेट अस नाउ अप्लाई फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है? इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d phi b, phi b इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज योर टाइम, ठीक है, याद रखो। काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द रेक्टेंगल, फिगर 33.6, यहां पर देखो ये क्या दिया है, ये रहा आपका, ठीक है। ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट h है, इसका ब्रेड्थ है यहाँ पर dx है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस DE है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज क्यों हो गई? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चेंजिंग है, साइनोसॉइडल इन नेचर है, तो एक जगह E होगी तो दूसरी जगह E प्लस DE हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर E प्लस DE लगा है, ठीक है। चलो आगे आओ।
साइक्लिक इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ पर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर क्या हो गई, ई प्लस डी हो गई, और ये जो डी एस कितना है बेटा, ये है एच, ये है कितना, एच, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस ई एच लिखा है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो एक बार आप लगाओगे ई इंटू एच, जब आप इस साइड मूव करोगे तो ई प्लस डी लगाओगे इंटू एच करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल किए, देखो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर देखो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखो। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो आप, ई इंटू एच यहाँ पर हो जाएगा और ये डी इंटू एच, तो ये प्लस ई एच है, ये माइनस ई एच है, ये कट हो जाएगा और आपका बचेगा एच डी ई, तो ये बच गया यहाँ पर एच डी, इसको इक्वेशन यहाँ पर दे दिए हैं यहाँ पर नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। लॉ को हम यूज कर रहे हैं ये वाले, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो देखो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है और ds डिस्टेंस कितना है, h, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिस्टेंस h है, चेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल की है, ठीक है, तब जाके ये आया है। अब आगे देखो, द फ्लक्स फाई बी थ्रू दिस रेक्टेंगल इज, देखो फाई बी फ्लक्स, बी फ्लक्स, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, इधर देखो, ये देखो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई को कैसे लिख सकता हूँ, बी ए भी लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ए आपका एरिया होता है बेटा। तो देखो यहाँ पर बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, भाई यहाँ देखो ना, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया बेटा, एरिया हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एच डी एक्स। तो ये आपका आ गया फाइव बी आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है ना, उसको यहाँ पर लिख दो, माइनस साइन को भी वहीं रहने दो, तो डी फाइव बी बाई डी टी इक्वल टू एच डी एक्स डी बी बाय डी टी। तो देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यू को रख दो, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसलिए जो आपका फ्लक्स है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे देखो ये इक्वेशन आपको भी मिली, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एच डी, LHS में जो हमने निकाले, LHS में जो हमने निकाले, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है, ये हमने निकाल चुके हैं, ये हमने निकाल चुके हैं, दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो देखो यहाँ पर एक रिलेशन आया, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी। देखो यहाँ पर जो डी वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, और ये वाला जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं डो, क्या बोलते हैं इसको, डो, ठीक है। तो ये डो ई बाय डो एक्स माइनस डो बी बाय डो टी, डी ई बाय डी एक्स माइनस डी बी बाय डी टी, ये होता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आपका होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये आपका होता है केवल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दो चीज को आपको याद रखना है और ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डो ई बाई डो एक्स, तो ई का हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा था, ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, के ई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलर फैशन पर आप डो बी बाय डो टी करोगे, आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, इक्वेट करोगे, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। क्यों इक्वेट करोगे, अभी आपने देखा कि ये दोनों बराबर है, तो उसको इक्वेट कर दो आप बढ़िया तरीके से। तो द रेशियो ओमेगा बाय के फॉर अ ट्रेवलिंग वेव इज इट्स स्पीड, जो ओमेगा बाय के का रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका स्पीड होगा, विच वी आर कॉलिंग सी, विच वी आर कॉलिंग सी। तो यहाँ पर देखो ई एम बाय बी एम, ई एम बाय बी एम क्या हो जाएगा आपका सी, बाकी सारी चीज़ें देखो क्या हो जाएगी, कैंसल कैंसल, ठीक है। और आपका
ई एम बाय बी एम को हमने सी बोला है और ओमेगा बाय को क्या बोला है, सी, ये बोला है, ठीक है। ऑल फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गुड, ओके, thank you everyone. So we will continue our previous year questions in the next session.